एडवोकेट दलजीत सिंह दी सैनी इंजीनियर कन्हैया सिंह दी तुम रखो जुजार दी। अभी हम लोगों का काम क्या होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस देना कि आप लोगों को ध्यान क्या रखना है। डायबिटिक फुट के लोगों में उनके पांव कटते हैं, हमारा टारगेट ये है कि आपका पांव कटने से कैसे बचाया जाए। महल दियार उसर रही खूनी दीवार लाल खुड़े दो नीर चिकार लाल खुड़े दो नीर चिकार। आज उन्हें रुख लगाइए रुख धरती का कहना। वाहिगुरू जी का खालसा। जेडी 813 ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਨਹਈਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਡਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ स्टेज पे बैठे वाइस प्रेसिडेंट सुपैडर लीडर एक सराही जी, साढ़े दरम्यान आए सरदार मल सिंह वासी कनेडा निवासी और मेरे मैंबर साथियों, अज असी महीनावार मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। बहुत ही खुशी की गल है कि तुम हुम आ के इस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचते हो। मैं समझदा कि साडे ਵਿੱਚੋਂ आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ हर बार आਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ हर बार ਭਾਵੇਂ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ डॉक्टर चंदन नारायण फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली तो आ रहे हैं, जिहड़े कि पैरां ते गिट्टियां दे स्पैशलिस्ट है। इस तो बिना 2 फरवरी तो लैके 29 फरवरी तक असीं तुहानूं एक क्लीयर कर दईए गल कि पहला असीं 2 फरवरी तो 1 मार्च तक लैंदे सीगे, यानी हर महीना इस तरह एक तरीक इंकलूड करते थे क्योंकि 1 तरीका वाले इतने बैठे होंगे आ। हुण असीं ये थोड़ी जी तुहाडी आग्या नाल ही अमेंडमेंट की है कि महीने के महीना जिहड़ा है काम ठीक है, पहली तो लैके महीने के लास्ट तक, पहली तो 31 तक, पहली तो 30 तक, इस बार पहली तो 29 तक, पर 2 तरीक तो ले आ क्योंकि पहली तरीक का जो पिछली बार आप उन्होंने सम्मानित कर चुके हैं। इस तरह सुनहरे पल
ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਕੌਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਛਪਦੀ ਆ। ਐਸਕੌਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਪਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਲਪੁਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ, ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਲਪੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੈਂਬਰ, ਸੋ ਤਾਜ ਗੀਤ ਹੈ ਤੁਮ ਤੁਮ ਰਖੋ ਨੀਏ ਕਾਨਗੀ ਗੁਜਾਰਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੰਸੋ ਲੜੀ ਪੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਧੋ ਲੜੀ ਪੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ, ਤੁਮ ਤੁਮ ਰਖੋ ਨੀਏ ਕਾਨਗੀ ਗੁਜਾਰਤੀ, ਜਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਪਾਈ ਮੇਰੇ ਆਣਗੇ, ਚੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਮੁਸਕਾਨਗੇ, ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਮਾਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਤੁਮ ਤੁਮ ਰਖੋ ਨੀਏ ਕਲਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤੋਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਵੀ ਸਹਾਰਦੀ, ਤੁਮ ਤੁਮ ਰਖੋ ਨੀਏ ਕਲਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੌੜ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣ ਵੱਜਦੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨੈਣ ਆਏ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ, ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਘੋੜੀ ਵੇਖੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦੀ, ਤੁਮ ਤੁਮ ਰਖੋ ਨੀਏ ਕਲਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਤੁਮ ਤੁਮ ਰਖੋ ਨੀਏ ਕਲਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਠੀ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਏ ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਦੀ, ਤੁਮ ਤੁਮ ਰਖੋ ਨੀਏ ਕਲਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਤੁਮ ਤੁਮ ਰਖੋ ਨੀਏ ਕਲਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦੋ ਲੜੀ ਪੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਲਪੁਰ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਨ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਨ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। डॉक्टर नारायण चंदन नारायण। पहले तो नमस्कार सबको। मेरा थोड़ा पंजाबी वीक है, अगर आप लोग मतलब आंधी तो है मैंने, आई एम आल्सो पंजाबी बट इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी, तो मैं हिंदी में अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो कैन आई स्पीक? ओके। मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारायण। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में आपके पैर, एड़ी, टखना, बेसिकली जो घुटने के जो नीचे का हिस्सा होता है, गोड्डे के जो नीचे का हिस्सा है, उसका डॉक्टर हूँ। अभी उसके अंदर जो आप लोगों से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायबिटिक फुट के बारे में। इस उम्र में हमको शुगर की तकलीफ रहती है। शुगर के कारण होता क्या है कि जो आपका पाँव है उसके अंदर जो नसें होती हैं, जिनका काम होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, जिससे हमको कोई सुई चुभती है या कोई कंकर पत्थर चुभता है तो हमको पता चलता है। बट डायबिटिक फुट के लोगों में क्या होता है, वो कंकर पत्थर सुई ये सब चुभना बंद हो जाता है, जिसको बोला जाता है न्यूरोपैथी या नस की प्रॉब्लम। धीरे धीरे ये नसें मरती हैं। अभी शुगर के पेशेंट में ये नसों का मरना है ही है, ये आगे भी मरेगी, ये बढ़ेगी ही। अभी हम लोगों का काम क्या होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस देना कि आप लोगों को ध्यान क्या रखना है। डायबिटिक फुट के लोगों में उनके पांव कटते हैं। हमारा टारगेट ये है कि आपका पांव कटने से कैसे बचाया जाए। एक छोटा सा कंकर, सपोज आप एक खुला चप्पल पहनते हैं, खुला जूता पहनते हैं, होता क्या है उसके अंदर, नॉर्मली आप गार्डन के अंदर चलने फिरने के लिए निकले, चप्पल पहना हुआ, एक कंकर आपके पांव के अंदर गया, आपके पांव की सेंसेशन खराब है, आपको पता नहीं चलता है या कम पता चलता है, या आपके पांव के अंदर जलन होती है या पांव ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसी सब कंडीशन आपको पहले से है या डॉक्टर ने बताई है। बट जब भी आप गार्डन में जाएंगे, कहीं पे भी चलने जाएंगे, वो कंकर पत्थर आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा या कम पता चलेगा। अब सुबह सुबह आप निकले थे 6 बजे सैर करने के लिए, 6 बजे आपके पांव के अंदर वो कंकर बैठा आके नीचे चप्पल और आपके पांव के बीच में, आपने पूरा दिन वैसे निकाल दिया, वो कंकर वहीं पे बैठ जाता है। वो चमड़ी जो है आपकी, उसको वो इरिटेट करता रहता है, वो उसको छीलता रहता है। अभी अगर रात को आके आपने आपके पांव नहीं धोए या चेक नहीं किया तो धीरे धीरे होता क्या कि वहां पे उसको वो खराश करता रहता है, जिससे वहां पे छोटे छोटे घाव बनना शुरू होते हैं। अभी ये घाव, एक सिंगल घाव ही जाके एक बड़ा घाव बनता है, क्योंकि शुगर के पेशेंटों की जो हीलिंग कैपेसिटी होती है घाव भरने की, वो बहुत कम रहती है। खून का बहाव पांव के अंदर ऑलरेडी बहुत कम रहता है। और एक दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि जैसे कि आपका जो दिल का डॉक्टर है, आपका शुगर का डॉक्टर है, आपका पेट का डॉक्टर है, हर डॉक्टर आपको बोलता है कि जाओ सुबह उठ के गार्डन में वॉक करो अगर आपको आपकी सेहत रखनी है अच्छी। बट अगर आप डायबिटिक फुट वाले हैं, आपके पांव ऑलरेडी डैमेज हैं, जहां की नसें डैमेज हो रही है, उस केस में हमारा सजेशन क्या रहता है कि आपको चलना कम है बट आपको एक्सरसाइजेस करनी है लेट के और बैठ के। एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 चक्के होते हैं, अभी एक चक्के के अंदर पंचर है, आप उस गाड़ी को कितना लंबा चलाओगे? डेफिनेटली नहीं चलेगा। अभी एक नया कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है कि WHO ने बोला कि 10,000 स्टेप पूरे करो, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा रहेगा। बस उस गाड़ी के जो पांव हैं, 2 पांव के ऊपर चलते हैं, हम हाथ पे नहीं चलते, हमको हाथों में इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी पांव में होती है। अब उन पांव पे हम चलेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, वो दर्द बढ़ेगा। आप दिन भर तो चल लिए, 2 चक्कर मार लिए, 4 चक्कर मार लिए, शौक के चक्कर पर, रात को जब आते हैं तो वहां पे दर्द होता है, जलन होती है। तो अल्टीमेट एम क्या है कि हमको हमारी हेल्थ मेंटेन करनी है। तो हेल्थ मेंटेन करने के लिए चलना जरूरी नहीं है, हाँ चलना चाहिए बट कम चलो, डिवाइड करो। सपोज आज हमारा दिन है चलने का, कल हमारा दिन रहेगा कमर की एक्सरसाइज करने का, अगले दिन हमारा दिन रहेगा पेट की एक्सरसाइज करने का, टांग की अलग मांसपेशियां हैं उनकी मसल की एक्सरसाइज करने का, शोल्डर की एक्सरसाइज करने का। बिकॉज इस उम्र में हमको हर हिस्से की तकलीफ होती है, कभी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कभी आपका नी आर्थराइटिस का पेन हो रहा है, तो हमको हर बॉडी पार्ट को एक एक दिन देना है। और कोई भी एक्सरसाइज अगर आपको करनी है, उसका एक सिंपल रूल है, 45 मिनट मिनिमम करना है, 45 मिनट। और उसके अलावा जो दिल की धड़कन होती है वो आपके 100 के ऊपर जानी चाहिए।
आजकल घड़ियां आती हैं जिसके ऊपर आपका हार्ट रेट दिखता है, पल्स कितना है, सब कुछ पता चलता है। उसका फायदा यही है, वो बनाई इसीलिए कि आपका हार्ट रेट आपको पता चले कि दिल की धड़कन कितनी जा रही है। अगर वो 130 के ऊपर जा रही है, मतलब जो भी आपने काम किया वो मेहनत का आपको असर डेफिनेटली दिखेगा। तो ये होता है डायबिटिक फुट के बारे में। अभी हम बात करते हैं एक बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं शार्कोट। डायबिटिक फुट के अंदर ही एक होता है शार्कोट, जिसके अंदर होता है क्या कि जो आपका पाँव है, जब भी आप अपने पाँव को देखेंगे तो अंदर की तरफ आर्च होती है। जब भी आप चप्पल पहनते हैं, आजकल आर्च सपोर्ट वाले शूज भी आते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं उनके पाँव की आर्च कोलैप्स हो जाती है, डायबिटिक फुट के अंदर हड्डियां अपने आप टूटने लग जाती हैं और पाँव ऐसा बन जाता है। एक जो घोड़ा होता है बच्चों का खेलने वाला, रॉकर बॉटम जिसको बोलते हैं, पाँव वैसा शेप ले लेता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी पाँव कटते हैं। अभी उनसे बचना है तो टाइमली, अगर जिस दिन आपको आपके पाँव के अंदर सूजन आती है, लाल हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो रहा है, एंड आपको बुखार कोई भी नहीं है, आपने आपका ब्लड टेस्ट करा लिया, उसमें देखा कि टीएलसी, ल्यूकोसाइड काउंट है, ये भी सब कुछ नॉर्मल जैसा आ रहा है, तो उस कंडीशन में जब पाँव गर्म है उस टाइम पे डॉक्टर को दिखाना है। बिकॉज शार्कोट एक ऐसी कंडीशन है जो कि ब्लड टेस्ट में हमको पता नहीं चलती है। वो सिर्फ आपको एक डॉक्टर ही बता पाएगा कि शार्कोट को आइडेंटिफाई करो, और शार्कोट को आधी दुनिया बचा नहीं पाती है। मैक्सिमम डॉक्टर उसको काट देते हैं क्योंकि वो पाँव क्या रहता है कि ऐसा इस तरीके से वो पेशेंट चलेगा। ओके, नॉर्मली क्या होगा, पेशेंट को जो चलना चाहिए इस तरीके से चलना चाहिए, पाँव का शेप ऐसा रहता है, पर रॉकर बॉटम में पाँव ऐसा हो जाएगा। जो पाँव का बाहर आना चाहिए था, पहली उंगली, पांचवी उंगली और एड़ी के ऊपर, अभी बाहर आएगा बीच के हिस्से पे। तो अल्टीमेटली ये भगवान ने ये हिस्सा बनाया नहीं था चलने के लिए, तो यहाँ की चमड़ी भी बनी नहीं थी चलने के लिए। अब यहाँ की चमड़ी पे जब बाहर आएगा, वो चमड़ी में अल्सर बन जाता है, अल्सर बनेगा, घाव बनेगा, अल्टीमेटली इन्फेक्शन होगा और वो पाँव कटेगा ही कटेगा। तो डायबिटिक फुट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, झंझनाहट किस दिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और 5-6 दिन हो गया कि आपकी सूजन कम नहीं हो रही है, उस टाइम पे आपको जाके इमीडिएटली जाके डॉक्टर को दिखाना है और चेकअप करवाना है। ये तो हुआ आपका डायबिटिक फुट के बारे में। दूसरा हम लोग आज बात करेंगे फ्लैट फुट के बारे में। कुछ लोगों के पाँव कैसे रहते हैं, जैसे अभी मेरा पाँव का अंदर का हिस्सा देखिए आप, ये आर्च होता है पाँव के अंदर के हिस्से में। कुछ लोगों के, माताओं के अडल्ट एज में क्या होता है, पाँव ऐसे कोलैप्स हो जाते हैं इस तरीके से। अगर आपके पाँव इस तरीके से चलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट फुट। अभी आपको मेरा घुटना देखना है साथ में, अगर मेरा फुट फ्लैट होने जा रहा है तो मेरा घुटना भी अंदर की तरफ आ रहा है इस तरीके से। तो अभी होगा क्या, अभी ये मरीज जब ऐसे चलेगा या कोई भी आदमी ऐसे चलेगा तो अल्टीमेटली भगवान ने बनाया था घुटने को सीधा, तो ये टेढ़ा जा रहा है, तो उस पाँव की वजह से आपका घुटना जल्दी खराब होगा। तो घुटने को बचाना है तो आपको आपके बेस को भी सीधा रखना पड़ेगा। इसलिए आजकल मार्केट में क्या आता है, कोई भी जूता खरीदने जाएंगे ना, वहां पे लिखा होता है आर्च सपोर्ट शूज, तो हर कोई आपको आर्च सपोर्ट शूज देना चाहता है ताकि आपका नी का पेन चला जाए। अभी साइमल्टेनियसली आपको हिप को देखना है। अगर अभी पैर को मैं फ्लैट करता हूँ इस तरीके से, ऐसा मुड़ गया है, ये घुटने के साथ साथ जो हिप का जॉइंट का मूवमेंट भी अंदर की तरफ होता है, तो अभी पेशेंट ऐसे चलेगा तो क्या होगा, जो हिप जॉइंट होता है वो भी एबनॉर्मल तरीके से घिसता है। उसका जो भगवान ने पोजीशन दिया था वो पोजीशन नहीं रहा है, तो दूसरी हड्डी के साथ घिसेगा तो ये खराब होता है। अल्टीमेटली यहाँ की मांसपेशियां अपना ज्यादा काम करती हैं, अल्टीमेटली आपको बैक पेन होता है। तो अगर आपके बेस में प्रॉब्लम है, आपको फ्लैट फुट है, तो आपको नी पेन भी आएगा, आपको हिप पेन भी आएगा, आपको बैक पेन भी आएगा। कई बार कंडीशन ऐसी होती है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे बैक पेन है, हमने एमआरआई कराया, कुछ नहीं आया, नी पेन है, एक्सरे कराया, एक्सरे नॉर्मल है, एमआरआई में हल्का सा कार्टिलेज खराब है, इतना बोलते हैं, बट फुट को कोई नहीं देखेगा। आप बोलेंगे एक्सरे में इतना कुछ नहीं है, तो ये दर्द क्यों हो रहा है मेरे को? बिकॉज आपकी बॉडी का 80 किलो का वजन है, 60 किलो का वजन है, आएगा किस पे? छोटे से पाँव पे। अभी हम जानवर नहीं रहे, हम लोग इंसान हैं, हम लोग दोनों हाथों पे दोनों पाँव पे नहीं चलते, हमारी पूरी बॉडी का वजन सिर्फ पंजों पे आता है। कितने छोटे छोटे पंजे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन, आपके पाँव में कितनी हड्डियां होती है, कोई बताएगा मुझे? कितनी होती है पाँव के अंदर? हमारे पास मरीज आता है, वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे ना पंजे में ऐसे दर्द होता है। पाँव के अंदर होती है 26 हड्डियां, घुटने के अंदर होती है 2 हड्डियां और एक छोटी सी हड्डी, 3 मान लीजिए, पाँव में 26 है।
तो अभी क्या है, वहां पे मांसपेशियां भी उतनी ज्यादा है, वहां पे लिगामेंट सपोर्ट भी, जो उनको सपोर्ट करने की सिस्टम थी वो भी बहुत ज्यादा है। तो अभी इसका इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपके बॉडी का भार झेलेगा ये, तो इसलिए उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। तो ये हुआ फ्लैट फुट के बारे में। अभी आगे बात करते हैं। एक होता है कि कुछ लोगों को ये तकलीफ रहती है, जैसे यंगस्टर्स में भी और ओल्ड एज में भी, हम चलते हैं, हमको डर लगता है कि हम गिर जाएंगे, हमको पकड़ पकड़ के चलते हैं, ऐसा डर लगता है कि ऐसा होता क्यों है। जैसे आपकी नसें मरना शुरू होती हैं, आपके जो साइड की मसल होती है यहाँ के बाजू वाले, उनका काम होता है पंजे को बाहर की तरफ पकड़ के रखना। जब भी हम चलते हैं, बाहर का बैलेंस चाहिए, अंदर का बैलेंस चाहिए। अभी बाहर की मसल्स वीक हो जाती है जल्दी उम्र के साथ साथ, क्योंकि हम कभी भी, हम सिर्फ बैठे बैठे ये एक एक्सरसाइज करते हैं। जब भी हम बैठते हैं, हम सिर्फ ऐसा या इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, एक ही सिर्फ पीछे का। हम कभी भी अंदर का बाहर का एक्सरसाइज नहीं करते, जिनका काम होता है बैलेंसिंग बनाना। तो अल्टीमेटली होता क्या कि वो मसल वीक हो जाती है। तो जब भी हम चलते हैं, हमको डर लगता है कि हमारा पाँव मुड़ जाएगा, हमको चोट लग जाएगी, तो ये तरीके की प्रॉब्लम आती है। इसके लिए हमको करना क्या है कि जब भी आप बैठ के एक्सरसाइज करते हैं या खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ में आपको ऐड करना है कि आपको अंदर बाहर ये एक्सरसाइज भी करनी है। वो कैसे करनी है? मैं सपोज आपने पैर ऐसा रखा अपना, ठीक है, आप अपने हाथ लेंगे, यहाँ पे प्रेशर देंगे, यहाँ पे प्रेशर दिया आपने, उसके बाद आपने यहाँ की मसल जो है उसकी हेल्प से आपको जोर लगाना है ऊपर की तरफ। इस तरीके से आप यहाँ की मांसपेशियों को ट्रेन करेंगे इस तरीके से। दूसरा रेजिस्टेंस बैंड आते हैं, वो बैंड आप यूज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी आप लोग कर सकते हैं। हर एक जिम में छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट को जो चीजें रहती है, उसकी हेल्प से आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अभी एक रहता है कि जैसे हम लोग 70 क्रॉस करते हैं, 70 के बाद हमको कोई ना कोई स्टिक चाहिए, कुछ ना कुछ वॉकर चाहिए, क्योंकि हमको गिरने का डर रहता है। अभी उस डर को कैसे भगाया जाए? आपको घर पे एक एक्सरसाइज करनी है, आपको दीवार को पकड़ना है, पाँव पे खड़े होना है इस तरीके से। सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ताकि वहां की मसल्स एक्टिवेट रहे। इस उम्र में हमारा काम है कि मसल को सिर्फ एक्टिवेट रखना है, हमको उसको बड़ा नहीं करना है। उससे हमको जैसे सपोज बाइसेप्स नहीं बनाने हैं बड़े बड़े, हमको मसल की इतनी ग्रोथ नहीं करानी है। हमारा काम ये है कि हमारे छोटे मोटे काम निपट जाए, हमको तकलीफ ना है, हम उन बीमारियों से बचे रहे। तो अभी आप ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ साथ फिर हाथ छोड़ के प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले पकड़ के, फिर हाथ छोड़ के, फिर नेक्स्ट स्टेज आता है कि पंजे के ऊपर खड़े होना है, इस तरीके से। बट जब ये सब एक्सरसाइज आपको करनी है, आपके आसपास कोई रहना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई नहीं है, आप गिरे, और इस उम्र में 2 फ्रैक्चर सबसे कॉमन है, एक तो रिस्ट का, एक हिप का। हिप का फ्रैक्चर हो तो 3 महीने बेड समझ लो। तो आपको हमेशा अपने आसपास किसी को रखना है ये एक्सरसाइज करने से पहले, ये तो आपको नुकसान ज्यादा हो जाएगा। लाइक इस तरीके से पीछे से आप देखेंगे पूरा पांव ऐसा मुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों के भी ट्रीटमेंट होते हैं, लाइक या पोलियो की वजह से हुआ हो, या स्ट्रोक की वजह से आपका पैर टेढ़ा हुआ हो, या आपको स्ट्रोक आया था जिसके बाद आपकी मसल्स मर गई, जिसके बाद हुआ क्या कि आपका पंजा है वो ड्रॉप हो गया। तो बेसिकली फुट ड्रॉप एक बीमारी होती है, जिसके अंदर आप जब चलते हैं तो फुट ऐसे नीचे गिरा रहता है और आपको नी उठा के चलना पड़ता है इस तरीके से। जिन लोगों को स्ट्रोक रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, नसें तो आपकी ठीक होने वाली नहीं है, हम लोग फुट ड्रॉप के लिए एक मांस का टुकड़ा ट्रांसफर करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका पंजा बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाता है, पंजा ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिससे जब चलेगा तो ना ही घुटना खराब होगा ना ही हिप खराब होगा। तो स्ट्रोक के पेशेंट के लिए एक बार आपको 1 साल तक फिजियो करना है। फिजियो के बाद भी चीजें ठीक नहीं होती है तो उनका भी इलाज होता है, चाहे पाँव का कोई सा भी मसल खराब हो चुका हो, कोई सा भी नस खराब हो चुका हो। फिर एक बीमारी होती है गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होता क्या है कि जो आपके हाथ पैरों के अंदर आप सुबह सुबह जब उठते हैं उस टाइम पे हमको लगता है कि अकड़न जकड़न हो रही है, हम दवाइयां खाते हैं तो ठीक हो जाता है, उसके बाद ये चीज दोबारा आ जाती है, आधे 1 घंटे तक आपको टिकनेस रहती है। रूमेटॉइड के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको ये स्पेसिफिक सुबह सुबह उठते हैं अकड़न जकड़न रहती है हाथ पाँव में, जो कि सर्दियों में बढ़ जाती है, गर्मियों में चली जाती है, ये कंडीशन आती है, तो आपको दवाई स्टार्ट करनी है। क्यों करनी है? ताकि आपके हाथ पैर टेढ़े ना हो। जो अंगूठे होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, जब टेढ़े हो जाते हैं तो नीचे जो पाँव के अंदर अंटन हम लोग बोलते हैं, गांठें बन जाती हैं,
हाथ में, पाँव में, वो गांठें क्यों बन रही है? बिकॉज आपकी हड्डियां टेढ़ी हो चुकी हैं। तो अगर आप टाइमली दवाई ले लेंगे, एक लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि गठिया है तो अपने आप ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसकी दवाई आपकी लाइफ टाइम चलनी है। दवाई का लेने का सिर्फ एक ही कारण है कि ताकि आपके पाँव में, हाथ में टेढ़ापन ना हो, ताकि आपका चलना फिरना बंद ना हो। तो उसी कारण से हम उसको दवाइयों पे प्रेशर डालते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि अभी सब कुछ टेढ़ा हो चुका है, अभी अंगूठा टेढ़ा हो गया, अभी उंगलियां सब टेढ़ी हो चुकी है, तो क्या ये सीधी हो जाती है? हाँ, ये सब सीधा हो जाता है, ये सब बट ऑपरेशन से सीधा होता है, इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है। तो पाँव के अंदर भी छोटे छोटे करके सीधा करने के ऑपरेशन होते हैं। अभी जैसे आपका घुटना खराब होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं नी आर्थराइटिस, जिसमें आप लोग नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, हर डॉक्टर बोलता है नी रिप्लेसमेंट करवा लो, नी रिप्लेसमेंट करवा लो। सेम एंकल जॉइंट का भी, जो आपका यहाँ का जॉइंट है, जहाँ पे ऊपर नीचे करने का मूवमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट का भी आपका आर्थराइटिस होता है, तो उसके अंदर भी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी है और बगैर सर्जरी वाले ऑप्शन भी रहते हैं। बट इसमें क्या करना है और कब करना है और उससे बचा कैसे जाए? उससे बचा कैसे जाए? अगर आपका फुट फ्लैट है तो आपको एंकल आर्थराइटिस बहुत जल्दी होगा, तो आपको 8 सपोर्ट पहनना है उससे बचने के लिए। अगर आपका फुट टेढ़ा है तो उसको सीधा कराना है, उसके लिए स्पेशल शूज आते हैं पहनने के लिए, वो भी आप ले सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पंजे पे चलते हैं इस तरीके से, तो उनका पंजा जब तक सीधा नहीं होगा तब तक उसको इलाज नहीं मिलेगा। पहला काम है पंजा सीधा करना, नहीं तो उसका एंकल जॉइंट सबसे पहले खराब हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। एंड एक आखिर में एक चीज, जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को घर पे जाके सिर्फ एक ही काम करना है। सुबह आप उठते हैं, घूम के आए, टहलिए, सब कुछ किया आपने, रात के टाइम पे आपको शीशा सामने रखना है, अपने पाँव को देखना है कि कोई दरार तो नहीं पड़ी है, कोई कंकर पत्थर तो नहीं है, और उसके बाद तो मॉइस्चराइजर से उसको सिर्फ आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। इतना आपको काम करना है सिर्फ एक ही। जो बड़े बड़े पैर कटते हैं उससे बचने से आप खुद ही बचा सकते हो, सिर्फ एक चीज करके। सिर्फ आपको शीशे के सामने रोज रात को अपने पाँव देखने हैं, सिर्फ ये एक ही काम आपको करना है। एंड आई गेस इतना बहुत है। ठीक है सर, हो गए अपने प्रॉब्लम बारे प्लीज खड़े होके पूछ लेना, सारे पता लग जूगा, डॉक्टर साहब सारे दस देंगे। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ दिखाना, तुम दिखाना चाहते हो डॉक्टर साहब, दिखाना चाहते हो? हाँ ठीक है। मुर्गा ले लो, आम लोगों ने गोटियां शिकायत की है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? सर देखो, ठहरो एक मिनट, दूसरा सवाल होगा नाल कर रहे डॉक्टर साहब ने एक जवाब दे देंगे। ओके, हाँ जी, सब सुन खड़ के क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ਦੇ ਆਨਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਜਾਂ ਵਿਕਸ ਲਾਓ, वो फायदेमंद है? शीशा देख कर करा लगे क्या करना? ये देखिए इसको बता रहा है। पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने यही बोला कि शीशा देखना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, दोनों काम करना है, एक नहीं करना। हमको शीशा देखना भी जरूरी है, मॉइस्चराइजर लगाना भी जरूरी है, तो आपको काम दोनों करने हैं, एक नहीं करना। और कोई एक दूसरे से ज्यादा ऐसा नहीं है, दोनों के इम्पोर्टेंस इक्वल है। हमको दोनों साथ में करना है, एक भी आगे पीछे नहीं करना, या एक भी छोड़ दिया दूसरा कर लिया, ऐसा नहीं करना। और जो पहला क्वेश्चन है कि गोडों की तकलीफ क्यों होती है, आप में से कितने लोगों के जो बाल हैं वो काले हैं? आपके काले हैं 50-50। आप लोग, मेरे जितना वजन, मैं जिम के अंदर 180 kg का डेडलिफ्ट मारता हूं, आप में से कितने लोग मार लेंगे इस उम्र में? वजन उठा के 180 kg में उठाता हूं, आप लोगों में से कितने लोग अभी उठा लेंगे? डेली उठाना है, डेली, ऐसा नहीं आज उठा लिया एक बार, 15 बार उठाएंगे, नीचे रखेंगे। कौन कौन करेगा? 15 बार तो बहुत ज्यादा है, एक दो बार उठा देंगे। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? सारे गुरुद्वारे में वोट करते हैं।
तो एग्जैक्टली गोडे खराब होते हैं, गोडे खराब होते हैं, आपका हिप भी खराब होता है, आपका एंकल भी खराब होता है, आपके बॉडी के हर जॉइंट खराब होता है। वो एक उम्र के साथ होने वाली प्रोसेस है। जैसे आपके बाल सफेद हुए हैं, झुर्री आई है, वैसे आपके गोडे खराब होने ही होने हैं। हाँ, गोड्डा एक सबसे बड़ा जॉइंट होता है, वहां पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, इसलिए वो घिसता है। एंड दूसरा कारण, इंडियन पॉपुलेशन के अंदर क्यों घिसता है वो, क्योंकि हमारे पास घर में कौन से टॉयलेट होते थे? इंडियन टॉयलेट में हमको नीचे बैठना पड़ता है, उसमें आपका गोड्डा ऐसा सीधा की बजाय ऐसा पूरा हो जाता है, तो उस पर स्ट्रेन ज्यादा आता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन अगर है लंबे टाइम से, तो आपका ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ये बीमारी नहीं है, ਅੱਛਾ ਜੀ। और ना कभी कदा दबिंदी है तांगा के अंदर, और बीमारी कोई भी बीमारी ता बीमारी कही जाएगी कि 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, दवाई खा ली, आराम नहीं किया, मतलब वो कोई बीमारी है। सिंपल जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चोट लगी, सिंपल ले लो कि पैर मुड़ गया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ डिसाइड करिए? एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी कोई चोट लगे, ये मान लो कि कोई चोट तो लगे कि पैर मुड़ा खाली, तो करना की है, रेस्ट करना है, लाल पट्टी होती है क्रैप बैंडेज वो बंद लेनी है, बर्फ लानी है, अरते पैर के थले सोंदे टाइम पिलो रखना है। 5 दिन में करो तो दवाई जी तुम लैनी केमिस्ट को या डॉक्टर को ले लो, दो गोली खानी है, गोली खानी ही खानी है 5 दिन। 5 दिन बाद भी जो तकलीफ ना जावे, परसिस्ट कर दिए then go and meet the doctor। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਰੋਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਏ ਕਰੇ ਵਾਲੇ दोबारा करिए, फिर करो जी दोबारा करो, अभी इन्होंने ऐसे किया, दूसरी तरफ समझ मैं नोट करे तो अभी इसमें देखिए इन्होंने मोड़ा ऐसे, तो ये मूवमेंट गोड्डे पे भी हो रही है और हिप पे भी हो रही है। मोस्टली आए बैठते हैं आपका सीधे ही बैठता है, टांगे सीधा करके। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰੇਗੰਢ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਫੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਲਾਲ ਖੜੇ ਢੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਲਾਲ ਖੜੇ ਢੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸੂਮਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ, ਉਸ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਲਾਲ ਖੜੇ ਢੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਨਾ ਸੂਬੇ ਢੇਰ ਲਗਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਸੂਬੇ ਢੇਰ ਲਗਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਸਗੋਦ ਚ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨੀਤ ਜੁਗਾਰ, ਉਸ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਲਾਲ ਖੜੇ ਢੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸੂਮਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ, ਉਸ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ। ਹ੍ਰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋੜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋੜੀ, ਹ੍ਰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋੜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋੜੀ,
ਧਰਮ ਅਸਾਨੀ ਛੱਡਣਾ ਸੂਬੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਰ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਲਾਲ ਕੁੜੇ ਦੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਉਸਰ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਸਭਨੀ ਚਿਹਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲਾਲ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਭਨੀ ਚਿਹਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲਾਲ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਆਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਉਸਰ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਲਾਲ ਖੁੜੇ ਦੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਉਸਰ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਲਾਲ ਖੁੜੇ ਦੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਲ ਖੁੜੇ ਦੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੱਖੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰੇਗੰਢ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਨ ਚਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਗਵੇ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਜੰਗਲ ਉੱਗ ਪਏ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਮੁੱਕੇ।
ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੋਕੀ ਜਦੇ ਸੋਮੇ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਗਾ ਸਹਿਣਾ। ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਮੋਢੇ ਕਦੀਮੋ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸਾਰੀ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ। ਤਪਦੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰਾਈਆਂ ਰੁੱਖੇ ਥਾਂ ਸਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤੇ ਅਤੇ ਕਟਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਲਣੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਭਾਗ ਭਾਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਛੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਸੌ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੋਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਗੰਦਲੀ ਪਾਉਣ ਨੇ ਛੋਟੋ ਜਾਣਾ ਜਦ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਖਹਿਣਾ। ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। बहुत ही सत्कारयोग सीनियर सिटीजन कौंसल के प्रधान सरदार दलजीत सिंह जी ते मेरे साथी एक बार फतेह की सांझ कर लीए। आप पहले सब थोड़ा जिहा ठंडा भी होया काम। वाहिगुरू जी का खालसा मैनूं धन्नवाद लई हुक्म होया। सब तो पहले तो उस परमात्मा का अल्लाह का अकाल पुरख का धन्नवाद जिन्होंने सानूं सारिआं नूं गुरूआं नूं इकट्ठा किया इकट्ठे होने का मौका दिता। उस तो अलावा जिन्होंने जन्मदिन इस मेले है उन्होंने सारे बहुत बहुत मुबारक। ਜਿਹੜੇ भी मैंबर बुलारिया ने अपने कीमती विचार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੇ ਸੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੈ। शायद मौसम का लिहाज बुजुर्गों की ज़्यादा है। ये भी एक खुशी की गल है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ जिन्हें भी हाजिरी लवाई है उन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। उम्मीद की जाती है अगली जी मीटिंग आई थी होर गिनती बढ़ेगी। सो अंत में मैं तुम सारे बहुत ही प्यार सत्कार सत श्री अकाल नमस्कार हैवी गुड डे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ बुलारे रह गए उन्होंने टाइम नहीं दे सकिया माफी चाहना। सो मैं प्रकाश कर दांगा आओ आप कप चाह का साझा करिए। हाँ अगली मीटिंग जी है जो अप्रैल की मीटिंग आएगी वो सही 3 बजे शुरू हो जाएगी। प्लीज समय का ख्याल रखे करो। 3 का 3 तो 4:30 तो ज़्यादा हो गए अभी माफी चाहांगे। अभी ज़्यादा नहीं होने 4:30 वेले करांगे। सो पंक्चुअलिटी जरूर होनी चाहिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे का तुहाडा शुक्रिया। चाह पीए ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਰੂਪਨਗਰ 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।